हेलो दोस्तों, मैं रोशन और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्टॉक मार्केट विद रोशन। यहाँ पे आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं उसका जिसका रिजल्ट अभी 9 तारीख को आने वाला है, 9 अप्रैल को आने वाला है। और उस स्टॉक के बारे में आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। उस स्टॉक का एक्सपेक्टेशन, मार्केट एक्सपेक्टेशन तो है कि इस स्टॉक का रिजल्ट जो है अच्छा ग्रोथ दिखाए और इस कंपनी ने जो भी पहले प्रॉफिट बना के दिए है उस तरीके से ही इसका अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाए, ऐसा मार्केट का एक्सपेक्टेशन है। चलो तो अभी हम लोग इस कंपनी के बारे में यहाँ पे क्या क्या जानने वाले हैं, एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट, 13 क्वार्टरली रिजल्ट जो पास्ट 13 क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखने वाले हैं। उसके बाद सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने वाले हैं, 6 फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बैलेंस शीट के रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कैश फ्लो रेशियो एनालिसिस, उसके साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न और कॉन कॉल इनसाइट जो भी है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो इसलिए आपको अगर अच्छे स्टॉक के बारे में जानना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चले कि हम लोग कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। चलो तो अभी हम लोग जानते हैं कि वो स्टॉक का नाम क्या है। तो आते हैं अभी हम लोग हमारे स्टॉक के ऊपर। तो उस कंपनी का नाम है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। तो जानिए कि ये कंपनी क्या करती है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। चलो तो मैं आपको एक स्मॉल वीडियो बताता हूँ इस कंपनी का, जिसमें ये कंपनी क्या करती है इसके बारे में सारी चीज़ें बताई हुई है। तो ये एक स्मॉल इसका वीडियो है जो आप देख रहे हो Today, अभी। we cater to 8 lakh plus customers. We have steadfastly adhered to our core values of customer centricity, ethics, and innovation. We cater to our customers at 300 plus locations pan India with our own branch network of 90 plus and 1100 plus partner offices. As the financial industry is moving towards digitization, we are at the forefront of the paradigm shift and are constantly developing newer technologies that make investing simpler and easier. We have built a broking and financial products distributions business that is high-tech and the same time is high-touch and is based on reliable research. While our high-tech investing platforms help investors become self-reliant, our high-touch people network of nearly 1200 plus relationship managers make sure that all our investors have a financial friend they can call or visit anytime to talk about finances and investments. Our people are highly qualified and well equipped to help all our investors at any given point of time. Whether it is our platforms or our people, research is bought back both. No investment decision is safe unless it is based on good quality research. And who would know this better than us? We have 30 years of experience in research and helping us in moving closer to their financial goals. We don't believe in offering financial products. We believe in offering financial solutions, which are always a combination of products and services that best suit a particular client profile. No matter which type of investor you are, or no matter which type of solution you are looking for, we have you well covered. We offer a combination of equity, commodity, currency, mutual funds, portfolio management services, insurance, corporate FDs, bonds, structured products, and a lot more. We believe in well-being, not just of our customers, but also our employees. Happy minds serve better. This is very much true at Anand Rathi, where we encourage our employees to live a healthy and balanced life, which includes concentrating on career, family, and dreams. We have built a spirited corporate culture, which is fostering an energetic, innovative, and tight-knit team of leaders. Financial business is all about trust, and we will continue on our path of helping investors to achieve their financial goals by giving them proper guidance. We have a long-term vision of helping every Indian become financially free and are moving forward in steady strides. We are your trusted financial friend. We are Anand Rathi. चलो तो ये देखो, आप लोगों Investments को in यहाँ पे securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सारे के सारे डिटेल्स इसके बारे में अभी हम लोगों ने जान ली कि कंपनी क्या करती है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा ही है, इस कंपनी में जो होता है इंश्योरेंस दे जाते हैं, बैंकिंग के रिलेटेड सारी कामें की जाती है। और दूसरी बात है जो वेल्थ क्रिएशन के लिए जो हमारी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि हम लोग कहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम लोग किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, ये लोग प्लान प्रोवाइड करते हैं हम लोग को। इसके इन लोगों के कुछ प्रोडक्ट है जो कि अभी मार्केट में फ़िलहाल अवेलेबल है। तो आप लोग वहाँ से भी अगर कोई चीज़ें आपको चाहिए होंगी तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो वही है आनंद राठी को कहाँ कहाँ से, जो ये आनंद राठी कंपनी है
इनको कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये लोग करते हैं मोस्ट ऑफ द काम में। तो इसके ग्रोथ वर्जन विजन दिया हुआ है इन लोगों का, कहाँ से इन्होंने स्टार्टिंग किया था और कहाँ पे अभी ले लोग है, सारी चीज़ें यहाँ पे देख के रखी हुई है। अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ से जाना होगा और ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। तो चलो हम लोग एक अभी ओवरलुक कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो आनंद राठी वेल्थ क्रिएटर वेल्थ लिमिटेड करके ये कंपनी का नाम है। अभी हम लोग इसकी मार्केट कैप जो देख रहे हैं 26,000 करोड़ की, जो हम लोगों को दिख रही है, मिड कैप कंपनी में आती है एक्चुअली में। इसकी करंट प्राइस है अभी 3,208 रुपीज़। इसका बुक वैल्यू जो है 97 रुपीज़ है। और इसका जो स्टॉक भी अभी चल रहा है फ़िलहाल के लिए वो 72 रुपीज़ पे चल रहा है, जो कि हाई है। बट लेकिन ये कंपनी का अगर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे तो वो भी अच्छी है। इसी की वजह से इन्वेस्टर अभी तक यहाँ पे जुड़े हुए हैं इन लोगों के साथ में। तो यही होता है कि जो कंपनी का अगर कोई अच्छी ग्रोथ कंपनी कर रही होती है तो इन्वेस्टर भी जुड़े हुए रहते हैं और उसका जो प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो जो होता है वो भी अच्छा खासा रहता है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हम लोगों को देखने मिल रही है अराउंड अराउंड 20% की, और प्रॉफिट ग्रोथ जो मिल रही है हम लोगों को 29% की। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये बेटा हम लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी चलो हम लोग आगे जाके देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट की बात करें आनंद राठी की, तो इस स्टॉक की अगर चार्ट की बात अभी हम लोग कर रहे हैं आज के डेट में, तो ये स्टॉक अपने हाई लेवल पे चल रहा है और एक नया ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, जो कि अभी हो सकता है क्योंकि इसका आने वाला रिजल्ट भी 9 तारीख को आने वाला है, 9 को। और उसमें ये स्टॉक अपने हाई लेवल पे ट्रेंड कर रहा है। तो अगर हम लोगों को इस स्टॉक में अगर अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है, यहाँ से अगर अच्छे खासे उसके प्रॉफिट्स आते हैं तो 6-7% का मूव और देखने को मिल सकता है हम लोग को यहाँ से भी। तो यही है दोस्तों कि अच्छा स्टॉक कभी इतने ख़राब मार्केट में भी अच्छे ही परफॉर्म करते हैं। बस वही है कि आपको स्टॉक ढूंढना आना चाहिए और स्टॉक ढूंढ के उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए, और कब उसमें इन्वेस्ट करना है और कब एग्जिट करना है ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। उसी लिए आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा कैसे आपको स्टॉक को एनालिसिस करना है, स्टॉक को ढूंढना है और स्टॉक को किस तरीके से आपको कब बाय करना है और कब आपको स्टॉक से एग्जिट करना है। यही होता है एक अच्छे इन्वेस्टर का, और स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का एकमेव तरीका है, यही है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी की 37 CAGR के हिसाब से चल रही है लास्ट 5 ईयर से। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 3 ईयर से वो भी 42% से, एकदम अच्छे ये रिटर्न्स भी है जो कि आप देख रहे हो। 40% से भी ज़्यादा रिटर्न से कंपनी प्रोवाइड कर रही है अपने इन्वेस्टर को। कंपनी गुड हेल्दी डिविडेंड भी दे रही है, 31% का डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, यानी कि समझ लो इस कंपनी का प्राइस बुक वैल्यू अगर 97 रुपीज़ है तो 33% यानी 31% यानी अगर हम लोग देखते हैं तो अराउंड अराउंड 28 रुपये तक आपको इसका डिविडेंड भी देखने को मिलता है पर शेयर के पीछे, जो कि ये अच्छी बात है एक कंपनी के लिए। और कंपनी यहाँ पे अभी देखेंगे हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिड्यूस, उन्होंने अभी उनके पास कैश फ्लो होगा इसलिए वर्किंग कैपिटल उन लोगों ने रिड्यूस कर दिया है अच्छा खासा। 140 डेज से 111 डेज पे ये लोग आ गए हैं। तो अभी इनके जो कॉम्पिटिटर्स जो कंपनियां हैं अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो आनंद राठी इज़ द बिगेस्ट कंपनी इन दैट फील्ड एक्चुअली। जो अभी बाकी के जो कंपनीज है प्रूडेंट कॉर्प, उसके बाद धरनी कैपिटल, और ये जो बाकी की कंपनियां हैं ये छोटी छोटी कंपनियां हैं इसके मुताबिक। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट क्वार्टरली कैसे है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसके जो सेल्स के जो नंबर्स हैं हम लोगों को जो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं।
अभी हम लोग दिसंबर 2022 का अगर यहाँ पे सेल्स देखते हैं तो यहाँ पे 138 करोड़ का ही सेल्स इनका हुआ था। उसके बाद डायरेक्ट 50 15 से इन लोगों ने डायरेक्ट सेकेंड ईयर में डायरेक्टली क्वार्टर टू क्वार्टर जंप किया। उसके बाद वापस से एक 15 से उन लोगों ने 50 से जंप किया। और यहाँ पे भी हम लोगों ने अभी देख रहे हैं तो अराउंड अराउंड 50 से ही यहाँ पे जंप हुआ है। यानी हर साल ये कंपनी 50 करोड़ का अपना सेल्स जनरेट करके दिखा रही है हम लोगों को लास्ट 4 ईयर से अगर हम लोग देखते हैं तो अभी इसके हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो देख रहे हैं सेल्स तो है ही अपने पास अच्छा खासा, जो 22% से यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, जो कि हम लोग अभी देख पा रहे हैं। और अभी दूसरी बात जो है एक्सपेंसेस के बारे में, यहाँ पे कॉस्ट जो है एम्प्लॉय कॉस्ट वो तो यहाँ पे सेम ही है 42% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम लोग यहाँ पे इस बिजनेस में देखते हैं तो अराउंड अराउंड हम लोगों को देखने को मिलता है 70%, 60%, अराउंड 80%, 100% तक इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट रह चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका रह चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम लोग मार्जिन देखें इनका तो 45% से इनकी मार्जिन चलती है। 45-46% से इन लोगों की मार्जिन पे ये लोग काम कर रहे हैं ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एक साल भी ऐसे, एक क्वार्टर भी ऐसा नहीं कि इनका कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो पिछले साल से कम आया हुआ है करके। यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो यही होता है जो अच्छी कंपनी जो होती है वो इसी तरीके से परफॉर्मेंस दिखाती है अपना, और अपने जो इन्वेस्टर होता है उनकी जो ट्रस्ट बिल्ड करती रहती है। अगर हम लोग इसका नेट प्रॉफिट भी देखें तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 43 करोड़ पे यहाँ पे सिर्फ खाली जब स्टार्ट दिसंबर 2022 में देखते हैं हम लोग 43 करोड़ का था, और जाके अभी वो 100 करोड़ तक आ गया। यानी 2 टाइम्स प्रॉफिट इसका बढ़ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है, 12 रुपीज़ पर अर्निंग पर शेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोगों को। यहाँ पे अभी हम लोग जो हम लोगों ने क्वार्टरली चीज़ें देखी है ये पे हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इनका, जो कि ईयरली बेसिस पे है। जो जैसे कि हम लोग बोलते हैं हमारे वीडियो में कि हम लोग 6 साल का डेटा एनालिसिस करने वाले हैं, 12 क्वार्टर्स का डेटा एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं इस चैनल पे, इसलिए बोला जाता है कि हम लोग आपको एक अच्छे क्वालिटी का शेयर निकाल के देने की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। बस वही होता है कि आप लोग उस शेयर को कौन से टाइम पे परचेस कर रहे हो। ये मार्केट में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि शेयर मार्केट में आप शेयर को कौन से लेवल पे और कौन से प्राइस पे परचेस कर रहे हो। ये चीज़ आप जब जानोगे तब आपका प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा वही से। जैसे कि आप देख रहे हो अभी 2019 में यहाँ पे अगर इस कंपनी के सेल्स के नंबर्स जो है यहाँ पे 280 के अराउंड अराउंड थे, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं 1000 तक पहुंच चुके हैं, 1000 प्लस पहुंच चुके हैं ऑलरेडी इसके 2026 में। यानी 6 साल में कंपनी ने 5 गुना अपना सेल्स बढ़ाया है, 5 टाइम से भी ज़्यादा अपना सेल्स कंपनी ने बढ़ाया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी है वो भी उस कंपनी ने 5 टाइम्स अपना बना लिया है। यानी आप लोग सोच सकते हो कि अगर 2019 में अगर इस कंपनी में किसी ने अगर पैसा डाला होता तो आज उसके कितने पैसे बन चुके होते थे। कि यही होते हैं एक अच्छे स्टॉक को बस आपको सही टाइम पे ढूंढना चाहिए और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऐसा वो चीज़ है जो कि कल क्या होगा इन्वेस्टर कभी नहीं सोचता कि कल क्या होगा। इन्वेस्टर सोचता है कि 5 साल के बाद में कंपनी कहाँ पे होगी। यही आपको एक थिंकिंग रखनी चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो, क्योंकि कल क्या होगा ये मायने नहीं रखता, बट लेकिन कंपनी 5 साल के बाद में कहाँ पे होगी ये इम्पोर्टेंस बहुत होता है कि कंपनी के विजन्स क्या है। यही सारी चीज़ें होती है अपने को देखने की।
अभी नेट प्रॉफिट भी हम लोग अगर देख रहे हैं 2019 में जो थे 58 सिर्फ खाली सीआर था, जो कि अभी 368 सीआर। अभी तो एक क्वार्टर के नंबर आने के और बाकी है, तो ये और भी बढ़ सकता है। तो जैसे ही क्वार्टर के नंबर इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये अच्छा खासा बढ़ा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। यानी ईयर ऑन ईयर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो अच्छी खासी इसमें बढ़त दिखने को मिल रही है हम लोगों को। अर्निंग पर शेयर हम लोग ईयरली देखें तो 44 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे हो चुका है। ऑलरेडी डिविडेंड पे आउट भी कंपनी अच्छा खासा कर रही है। 39% का लास्ट ईयर किया था कंपनी ने। अभी इस साल में प्रॉफिट भी अच्छा है, तो हो सकता है मे बी डिविडेंड का भी अच्छा खासा परसेंटेज भी बढ़ा दिया जाएगा। तो चलो अभी देखते हैं हम लोगों को कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्या है इसकी। 5 ईयर में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 24% से दिखाई गई है और 3 ईयर में 32% से कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है। यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो दिख रही है हम लोगों को 5 साल की 37% से ये कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है कंपाउंडेड। और स्टॉक का प्राइस CAGR 3 ईयर में तो 99% से भाग गया है, 1 ईयर में 79% से ऊपर चला गया है। ऑलरेडी आप देख ही पा रहे होंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 5 साल के बाद में हम लोग को 41% के यहाँ पे अभी तक रिटर्न मिल जाते थे। और 3 साल में 43% के, और लास्ट ईयर 1 साल में भी हम लोग को 45% के रिटर्न यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकते थे। तो चलो इसकी बैलेंस शीट पे हम लोग आते हैं। अभी थोड़ा बैलेंस शीट का एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि इक्विटी कैपिटल जो कंपनी का था वो भी बढ़ चुका है एक्चुअली। जो ओके ठीक है, इक्विटी कैपिटल भी यहाँ पे बढ़ चुका है कंपनी का। 42 CR का यहाँ पे हो चुका है। रिजर्व जो कंपनी के थे वो भी अच्छे खासे कंपनी ने ग्रो कर लिए हैं। बोरोविंग अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी का बोरोविंग भी कंपैरेटिवली बढ़ा है, बट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है जितने ज़्यादा रिजर्व कंपनी के बड़े हुए हैं। यानी कि जो प्रॉफिट है वो तो आपके पास रिजर्व में है ही, कोई बात है नहीं जैसे कि डरने की। जैसे यहाँ पे रिजर्व कंपनी के पास अच्छे खासा है, कंपनी लायबल है कुछ किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी आने वाली दुर्घटना के लिए या फिर कुछ भी बोलो तो कंपनी इज़ लायबल एनीथिंग और एनी वर्स्ट कंडीशन। बोरोविंग फिक्स असेट अगर हम लोग देखते हैं तो इन लोगों के पास 200 करोड़ की सिर्फ खाली अराउंड जो है फिक्स असेट है, जो कि इन लोगों को ज़्यादा इनके बिजनेस में होते भी नहीं है। असेट मैनेजमेंट वाले क्या ही एक्चुअली में फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनके पास क्या होंगे, कंप्यूटर्स होंगे देखा जाएगा तो यहाँ पे बिल्डिंग्स होंगी अगर कहीं पे लिया हुआ। इंटेंजिबल असेट देखो यानी सॉफ्टवेयर्स के, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखा तो अभी ये जो है 12 करोड़ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो सकती है इन लोगों की। अदरवाइज कंप्यूटर वगैरह जो खर्चा होंगे ऑफिस के लिए उतना ही इन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा, ज़्यादा तो कुछ इस धंधे में लगता नहीं है। तो अदर एसेट में हम लोग देखते हैं, अदर एसेट में जो होते हैं ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि जो लोगों से पैसा आने बाकी है सेल्स करने के बाद में। कैश इक्विवेलेंट यानी ये जो चीज़ें होती है जो कि हम लोग कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोन एंड एडवांसेस जो कंपनी ने देख के रखे हुए हैं वो 8 करोड़ के हैं। अदर असेट एंड लाइबिलिटीज जो देख के रखे असेट आइटम्स जो है कंपनी के वो 500 करोड़ के हैं। तो यहाँ पे ऐसे 1120 करोड़ की इसकी बैलेंस शीट बन रही है। कैश फ्लो देखते हैं, कैश फ्लो भी अच्छा ही है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, बट लेकिन वो पॉजिटिव कहाँ से पॉजिटिव हो रहा है ये भी हम लोगों को बहुत बारीक तरीके से एनालिसिस करना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे ध्यान देना होता है कि अगर ऑपरेशन से अगर पैसा आ रहा है किसी कंपनी में तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ग्रो कर रही है। देखो तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, अगर हम लोग देखते हैं तो 402 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट जो आया ऑपरेशन से ही आया है। रिसीवेबल जो है 7 करोड़ से माइनस पेबल जो है 0 है। अदर आइटम जो है यहाँ पे 47 माइनस दिखाया गया है। हम लोग देख रहे हैं
कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो चीज़ें होती है जो कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है और वो सेल कर रही है कंपनी, तो उनको अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई देता है अपने को। जैसे कि फिक्स असेट परचेस किया है कंपनी ने, तो हम लोगों के पास पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब आउटफ्लो हुआ है यहाँ पे। तो 36 करोड़ का यहाँ पे आउटफ्लो हो चुका है। इन्वेस्टमेंट परचेस यहाँ पे हम लोगों ने इन लोगों ने किया है, तो 117 करोड़ का यहाँ पे आउटफ्लो हुआ है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो कुछ कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए है तो उसका कंपनी को पैसा मिला है, तो उसका पैसा भी यहाँ पे आ चुका है। तो अगर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हम लोग देखें अभी, तो ओवरऑल में 46,000 कंपनी के पास आया हुआ है। बट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है कि कंपनी ने खुद से खुद के पास से कंपनी पैसे दिए हैं मार्केट में किसी को, तो इसमें किस चीज़ को पैसा खर्चा किया है कंपनी ने, ये हम लोगों को देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। कि यहाँ पे बोरोइंग तो बहुत ज़्यादा नहीं है कि कंपनी का बहुत ज़्यादा फंड जो है इंटरेस्ट में जा रहा है, तो हम लोग उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। बट लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा है कि बोरोइंग के लिए कंपनी ने कहीं पे पैसा दिया है करके। यहाँ पे जो है थोड़ा है 13, ये इंटरेस्ट का है थोड़ा पैसा जो यहाँ पे बोरोइंग का है। और अदर फाइनेंशियल आइटम जो है, ये तो अपने को थोड़ा एनालिसिस करके और डीप एनालिसिस करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो अभी कुछ दिखाया नहीं है उन लोगों ने कि फाइनेंशियल आइटम का हो सकता है यहाँ पे सॉरी, लोन रिपेमेंट किया गया होगा, या फिर डिविडेंड, जैसे कि यहाँ पे देखिए डिविडेंड पेड किया है तो पैसा यहाँ पे जाने वाला ही है। फाइनेंशियल लायबिलिटी जो भी है यहाँ पे हम लोगों को दिखाना पड़ता है। यही होता है कैश फ्लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि हम लोगों को देखना होता है। नेट ओवरऑल अगर हम लोग कैश फ्लो देखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव में 11 करोड़ का हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फ्री कैश फ्लो क्या होता है एक्चुअली, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तो बता दूंगा, कि क्योंकि अभी ये बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, तो हर एक चीज़ बताना मुझे पॉसिबल तो नहीं हो रही है। तो चलो हम लोग आगे जाते हैं, हम लोग रेशियो देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखते हैं हम लोग डेटर डेज, यहाँ पे जो है कि हम लोगों को समझ में आ रहा होगा। डेटा डेज जो होते हैं कि हम लोगों को बिलिंग की रिकवरी जो होती है, कस्टमर से जो पैसा आना होता है उसका 13 डेज का अभी यहाँ पे डेटा रेशो दिया हुआ है। यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल जो दिया हुआ है, जो कि हम लोग सेल्स कर रहे हैं उसका कैश में कितने दिन में कन्वर्जन हो रहा है, 13 डेज में ही कन्वर्जन भी हो रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज जो दिया है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस करके इन लोगों ने 1100 पे लाया, 111 डेज पे लाया है, जो कि अच्छी चीज़ है क्योंकि इन लोगों ने जो कैश वर्किंग कैपिटल है उसका यूज़ करना भी थोड़ा कम कर दिया है। तो ये अच्छी एक साइन मानी जाती है किसी भी कंपनी के लिए। यहाँ पे इन साइड में जो है ये सारी चीज़ें दी हुई है कि कहाँ से बिजनेस कितना आ रहा है, कौन से सेक्टर से बिजनेस कितना ग्रो हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे अभी आपके स्क्रीन पे। हम लोग एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास इसमें सिर्फ खाली 43% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो कि एक थोड़ी सी रिस्क की बात होती है हमारे लिए, इन्वेस्टर के लिए। ताकि अगर प्रमोटर ही खुद कॉन्फिडेंस नहीं हो तो हम लोग कहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाए इस कंपनी में, ऐसी चीज़ हो जाती है। बट लेकिन कभी कभी कंपनी को अपने शेयर्स बेचने पड़ते हैं किसी कारणों की वजह से, और मार्केट से पैसा उठा के कंपनी को ग्रो करना पड़ता है, ये भी होता है। तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि कंपनी के शेयर होल्डर के होल्डिंग कम है तो इसका मतलब कि वो कंपनी ही खराब है करके, ये तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा एज्यूम भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसे है और कौन से सिचुएशन में प्रमोटर ने अपने स्टेक बेचा है। तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो जून 2025 सितंबर, यहाँ से ज़्यादा स्टेक अभी शेयर होल्ड अपना जो प्रमोटर के पास तो है, क्योंकि उन्होंने एक्वायर किया है वापस से ओपन मार्केट से। तो जैसे कि अभी हम लोग एफ आई और डी आई भी देख रहे हैं,
देख ही लेते हैं। तो एफआई में तो हम लोगों को यहाँ पे ओपन कुछ हो नहीं रहा है, बट लेकिन फिर भी 6% की जो इसमें इन्वेस्टमेंट है, 6.66% की जो एफआई के पास है, और डीआईएस के पास जो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं उनमें से कुछ इन्वेस्टर के पास यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप हो गई, जैसे कि क्वांट म्यूचुअल फंड हो गया, इन लोगों के पास भी कुछ हिस्सेदारी है इसमें, 2% 3% ऐसे। अभी गवर्नमेंट में भी, गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ थोड़ा सा परसेंटेज होगा जो कि एकदम मिनिमम होगा। पब्लिक में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें मेजर जो स्टेक है वो राठी फैमिली के पास ही दिख रहा है। तो यही है कंपनी, इस तरीके से पूरा कंपनी का हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया है। तो अभी हम लोग कौन कॉल देख लेते हैं इस कंपनी का, जो कि Ladies and gentlemen, तो सॉरी दोस्तों, ये कौन कॉल जो है अपना रिकॉर्डेड है। पीपीटी एक बार देख लेते हैं, ट्राई करते हैं कुछ मिलता है तो। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 20% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाया हुआ है। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे जो दिखाया हुआ है 21% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है, जो कि 2026-2025 का इन लोगों ने कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है। 9 मंथ ईयर ऑन 9 मंथ का भी यहाँ पे दिया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी दिया हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अर्निंग पर शेयर के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे देख चुके हैं। ईयूएम जो है इनका बिजनेस का, ये भी इन लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। तो सारी चीज़ें दिखाई हुई। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें किस तरीके से ग्रो कर रही है। और मैं इस कंपनी के बारे में इतना पॉजिटिव क्यों हूँ, यहाँ पे आप लोगों को सबको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि ऐसे नंबर्स मिलना मार्केट में बहुत रेयर होता है, और वही कंपनियां मल्टीप्लाई कर बनती भी है। तो आप देख रहे होंगे अभी इसके नंबर्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फ्रॉम 9 मंथ के अगर जो देख पा रहे होंगे आपके क्या परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे अभी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बन रहा है इनका, रिटर्न ऑन इक्विटी कितने परसेंट से बढ़ी है 9 मंथ में, बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर क्वार्टर 3 9 मंथ जो आप देख रहे हो। यहाँ पे इनका ईवीएम भी बढ़ा है। यही होता है कि एक अच्छी कंपनी आप अगर ढूंढते हो तो उसके बारे में सारी चीज़ें जानना, समझना, और उसके बाद में उसमें इन्वेस्ट करना। तो यही आपका पास एक मंत्र होना चाहिए जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा डालते हो तब। तो देखो अभी ये आप लोग शांति से पढ़ सकते हो। मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा मेरे यहाँ पे कौन कॉल के बारे में, जो कि आप लोग मेरे अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ये आप लोग शांति से पढ़ो, उसको समझो क्या कंपनी कर रही है, किस तरीके से कंपनी की ग्रो हो रही है, कंपनी के क्लाइंट बेस क्या है, कंपनी के अभी तक कंपनी के पास कितना क्लाइंट है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखना ज़रूरी होता है। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली है। आपने भी मेरे साथ कुछ सीखा होगा, कुछ मैं आपसे सीख लूँगा कमेंट में से। अगर आप लोग कुछ कमेंट में अगर मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है तो डाल दो। तो यही होता है एक अच्छा इन्वेस्टर बनने का एक स्मॉल स्मॉल स्टेज, जो आपको एनालिसिस करके अंडरस्टैंडिंग करके आपको अडॉप्ट करनी है। अगर मेरे साथ रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, चैनल को लाइक करेंगे, और चैनल के जो वीडियो आएंगे वो आप देखेंगे, तो 100% मैं आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बना के ही छोड़ूंगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो भी वीडियो आ रहा है उस वीडियो को देखना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है। उस वीडियो में जो आपको करने के लिए बोला गया है, खुद से जो एनालिसिस करने के लिए बोला गया है, वो चीज़ें करिए। आप 101%
कुछ ही दिनों में एक अच्छे इन्वेस्टर बनने के लिए काबिल हो जाओगे। अच्छे इन्वेस्टर वही होते हैं जो डेटा को एनालिसिस करने के बाद में रिस्क समझते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलो तो दोस्तों, थैंक यू, आपने अभी तक इस वीडियो को देखा। इसका मतलब यही हुआ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है वो आपके काम की होंगी। तो एक काम आप भी करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए प्लीज़। धन्यवाद, थैंक यू।